آج مجھے مسجد کی صحیح سے صفائی کرنی تھی۔ مجھے مسجد کے امام نے خاص تلقین کی تھی، لیکن گرمی اتنی تھی کہ میرا پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ چل کر جیسے ہی میں مسجد گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ مسجد میں تو سکون ہی سکون تھا۔ پر ابھی میں سیڑھیوں پر پہنچی تھی جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ اس وقت مسجد کی سیڑھیوں پر کس کا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ میری پریشانی میں اضافہ تو تب ہوا جب یہ آواز مجھے قریب سے محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بچہ میرے بغل میں موجود ہو، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک لمحے کو تو میں ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی اور ہی مخلوق کا بچہ ہو، کیونکہ اس وقت تو مسجد بالکل خالی ہوتی تھی۔ مسجد میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ کل ویسے ہی امام صاحب کی محفل لگنی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے مسجد کی صفائی کا کہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس وقت مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس آواز کا تعاقب کرنے لگی کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے 2 منٹ میں وہ بچہ نظر آ گیا جو کہ سیڑھیوں کے نیچے موجود تھا اور رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے کافی ترس آیا تھا۔ میں تو اب اس کے ماں باپ کو جلی کٹی سنانے لگی تھی، جنہوں نے اس چھوٹے سے بچے کو یہاں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ پر آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں لگی۔ میں نے جھٹ سے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تھا۔ وہ بچہ رو رہا تھا، پر جیسے ہی میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بچہ فوراً چپ ہو گیا۔ اس بچے کی گہری سرمئی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو اور بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کے نئے نقش کافی پرکشش تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کا ہو۔ میں نے فوراً ہی اس بچے کی معصومیت پر فدا ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بچہ بالکل چپ ہو گیا تھا، پر اب میں مسجد نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اس بچے کو اپنے ساتھ لیے میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میرے ٹوٹے پھوٹے گھر سے غربت ٹپکتی تھی۔ رمشا نے جیسے ہی میری گود میں یہ بچہ دیکھا تو اسے فوراً سے آ کر کہنے لگی کہ خالہ، یہ بچہ کس کا ہے؟ رمشا میری بہن کی بیٹی تھی۔ میری بہن کا انتقال 3 سال پہلے ہو گیا تھا، جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے ناران جا رہی تھی اور راستے میں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تب سے میں نے رمشا کو پالا تھا اور اب یہی میری کل کائنات تھی۔ اس بچے کو دیکھ کر وہ چانک گئی تھی۔ وہ کہاں گوارا کرتی تھی کہ میرے پیار میں اس کے علاوہ اور بھی کوئی شریک ہو۔ میں نے اسے تسلی دی کہ رمشا، یہ ہمارا مہمان ہے، یہ زیادہ دیر تک ہمارے گھر پر نہیں رہے گا، تم فکر نہ کرو، بلکہ ابھی رات تک اسے آ کر کوئی لے جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈ ہی رہے ہوں گے۔ جیسے ہی یہ بچہ انہیں ملے گا تو یہ اسے واپس لے جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا تاکہ وہ واپس آئے تو میں اسے بتا سکوں، اور اگر پھر اس بچے کے ماں باپ یہاں تک نہ آ سکے تو میرا شوہر اس بچے کو کہیں لے جائے۔ جیسے ہی رات ہوئی میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس بچے کو بھوک لگ رہی تھی، جبکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے گھر میں موجود سارا دودھ اس بچے کو پلا دیا تھا، پر یہ بچہ پھر بھی رو رہا تھا۔ مجھے اب کافی ترس آ رہا تھا، جبکہ رمشا بھی بہت تنگ آ گئی تھی۔ یہی کہہ رہی تھی کہ خالہ، اس بچے کو کہیں چھوڑ آئیں، اس نے تو میرے حصے کا دودھ بھی پی لیا ہے، ایسا کیسے چلے گا، میں کیا پیوں گی؟ میں نے اسے تسلی دی کہ دیکھو رمشا، تمہارے خالو جیسے ہی آئیں گے تو وہ تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں گے، فکر مت کیا کرو۔ کیا پتا یہ بچہ کافی دن سے بھوکا ہو، اسی لیے اس نے سارا دودھ پی لیا ہو۔ رمشا تو خاموش ہو گئی، پر جیسے ہی گھر کا دروازہ بجا تو میرا شوہر بھی واپس آ گیا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا تو مجھے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری داستان سنا دی۔ تب شوہر کہنے لگے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی مسجد جاتا ہوں اور وہاں جا کر اعلان کرواتا ہوں، جس کسی کا بھی بچہ ہوگا وہ آ کر لے جائے گا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ ہمیں اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ رمشا تو اب سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ جب تک یہ بچہ ہمارے ساتھ رہے گا میں چین کی نیند نہیں سوؤں گی، پر وہ بچہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اور دودھ منگوایا تھا۔ شوہر نے بھی ہمت کی اور باہر جا کر دودھ لے کر آیا،
पर उस बच्चे ने वो दूध ऐसे पिया था जैसे वो काफी अरसे से भूखा हो, जबकि कुछ देर पहले ही मैंने उसे दूध दिया था। शोहर कहने लगा कि लगता है इस बच्चे को हमें ही पालना चाहिए, जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चल जाता हम इसकी परवरिश करेंगे। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अगर मैंने इस बच्चे को पाला तो मेरे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा तो बहुत खाता था, उसका पेट ही नहीं भरता था और यूं तो हम कंगाल हो जाते। मैंने अपने शोहर से शिकवा किया था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जब मेरे शोहर ने मुझे कहा कि देखो रोशनी, इससे पहले भी हमने काफी कोशिश की है कि हमारी औलाद हो जाए, हमने काफी पीरू मुरीदों से इलाज करवाया है और हमने उन्हें अपने मसले सुनाए, लेकिन हमें कोई अफाका नहीं हुआ, हमारी कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद अल्लाह ने हमें रमशा दे दी। बेशक हमने अपनी बेटी समझकर पाला है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि काश मेरा बेटा होता। औलादे नरीना की तो और बात होती है, बढ़ापे में वही तो बाप का सहारा बनता है। मुझे लगता है शायद अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली है, जो इस छोटे से बच्चे की शक्ल में अल्लाह ने हमें औलाद दे दी है। हम ऐसा करते हैं कि इसे पालते हैं, इसकी परवरिश करते हैं। अगर इसके माँ बाप आ गए तो हम इसे वापस दे देंगे। और हाँ, इससे हमारे रिस्क में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है वो अपना रिस्क लेकर आता है। क्या पता इसके आने से हमारे बख्त लग जाएं। अपने शौहर की बात सुनकर मैं भी गहरी सोच में पड़ गई थी। मेरा नाम रोशनी है, हम 2 बहनें थी। मेरी बहन की शादी मेरी शादी से कुछ ही पहले हुई थी, जब अल्लाह ने उसे रमशा जैसी चांद सी बेटी से नवाजा। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब रमशा 2 साल की हुई तो मेरी बहन का इंतकाल हो गया। मेरी शादी वकार से तब हुई थी जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था और अम्मा ने बिना देखे ही मेरी शादी कर दी। अम्मा का यही ख्याल था कि दौलत तो नसीब की बात है, और यूं मैं वकार के साथ एक टूटे फूटे घर में आ गई। वकार बहुत अच्छा इंसान था। वकार ने मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास तो खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं होती। वकार काफी मेहनत करता, जिसकी वजह से मैंने भी गुजारा करना शुरू कर दिया था। मैंने कभी ये ख्वाब नहीं देखे थे कि मेरी जिंदगी भी महलों जैसी शहजादियों की हो, बस जो मिलता उसी पर गुजारा कर लेती। जब अम्मा ने मुझे कहा कि अब तुम्हें रमशा की देखभाल करनी होगी, शायद अल्लाह ने तुम्हें औलाद के तौर पर तोहफा दिया हो, और वकार को भी कोई मसला नहीं था। अब मैं भी रमशा को पालने लगी थी। रमशा के आने से तुम्हारे घर का खर्चा और भी बढ़ गया था, लेकिन वो मेरी बहन की बेटी थी। मैंने कभी भी खुदा से शिकवा नहीं किया था। पर जैसे ही उस रोज मस्जिद की सीढ़ियों पर मुझे वो बच्चा मिला, उस मौके पर ही हमारी जिंदगी बदल गई। एक पल को हमारे घर से सब कुछ छिन चुका था, कुछ नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उस बच्चे के आने की वजह से हुआ है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद हालात ऐसे बदले गोया काया पलट गई हो। मुझे यकीन नहीं आता था कि उस छोटे से बच्चे के आने से मेरी किस्मत ऐसे बदल जाएगी। वो बच्चा तो मुझे देखकर मुस्कुराता रहता। मैंने उस बच्चे का नाम दिलावर रखा। जब से दिलावर हमारी जिंदगी में आया था, तब से मेरे शौहर का काम खुल गया था। उसका कारोबार आगे बढ़ने लगा। उसने ये गैर मामूली तब्दीली वाज़ेह तौर पर देखी थी, और अब तो मैंने भी मस्जिद की सफाई करना बंद कर दी थी। मुझे मस्जिद के इमाम काफी कहते थे कि अब तो मस्जिद पर नहीं आती, पर मैं उनसे क्या कहती। पहले तो मैं मजबूरी के तहत मस्जिद चली जाती और इमाम साहब की बेगम की काफी खिदमत करती थी। मस्जिद की सफाई के साथ साथ उनके घर की सफाई भी कर लिया करती। पर अब मेरे शौहर मुझे कहते कि रोशनी, तुझे ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, दिलावर के आने के बाद हमारे नसीब खुल गए हैं, अब हमें किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। यूं वकार के कहने पर मैंने मस्जिद जाना बंद कर दिया, वरना तो पूरी ख्वाहिश होती थी कि मैं मस्जिद जाऊं, क्योंकि मस्जिद में तो एक अलग ही सुकून होता। दिलावर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। जैसे ही रमशा 10 साल की हुई तो वो उस वक्त 4 साल का हो गया था। अब वकार मुझसे यही कहता कि अब वक्त आ गया है कि हमें दिलावर को किसी अच्छे से मदरसे में डाल देना चाहिए, ताकि ये भी पढ़ लिख जाए। मैंने जैसे ये सुना तो डरने लगा कि कहीं ये वापस न चला जाए। मुझे याद आने लगा कि मैं दिलावर से इतनी मनूस हो चुकी थी कि मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकती थी।
मुझे वकार ने समझाया कि देखो, जो माँ बाप 4 साल तक नहीं आए वो अब क्यों आएंगे? तुम इस बात को अपने जहन से निकाल दो। अब दिलावर ही हमारा बच्चा है जिसे अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है। अब ये हमसे कभी अलग नहीं होगा। यूँ मुझे भी तसल्ली हो गई। हमने दिलावर को अच्छे से मदरसे में दाखिल करवा दिया। दिलावर बाकी लड़कों से अलग था। वो 4 साल का तो था, लेकिन दिखने में वो बहुत ही ज्यादा संजीदा लगता। वो बातों को बहुत जल्दी समझ लेता था। उसमें अजीब सी कशिश थी। उसका संजीदा मिजाज उसे बाकी सबसे मुख्तलिफ रखता। पर जब वो गुस्से में होता तो ना जाने वो किसी का भी नहीं सोचता। अब वो सुरमई आंखें एक पल में बदल जाती। मुझे उसे देखकर काफी दहशत होती। मैंने कभी भी उसे डरना नहीं सिखाया था। मैंने दिलावर को सख्त तंबीह की थी कि देखो दिलावर, तुम्हारा मदरसे का पहला दिन है, वहाँ पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो सब लोग मुझे कहेंगे कि मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं की। दिलावर ने बस सर हाँ में हिलाया था। मुंह से वो कुछ भी नहीं बोला। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि उसका पहला दिन अच्छे से गुजर जाए। लेकिन जैसे ही 2 बजे मुझे टीचर की कॉल आई, मैंने जैसे ही वो कॉल सुनी तो खबर सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने फौरन वकार को कॉल किया। वकार को बताया कि कैसे हमारे होनहार बेटे दिलावर ने एक लड़के का बाजू तोड़ दिया है। वकार ने यह खबर सुनी तो वो भी नासमझी के आलम में देखने लगा। कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा बेटा 4 साल का ही तो है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो किसी का बाजू मरोड़ दे। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, जाकर टीचर से कह दो कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वकार ने 2 टोक कहा था, पर अब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे दिलावर में बाकी बच्चों से काफी ज्यादा गुस्सा नजर आता। मैंने दिलावर को वकार के खिलाफ जाकर मदरसे से निकलवा लिया था, लेकिन अब कभी कभार दिलावर गलियों में बच्चों के साथ खेलता रहता। वो घर पर रहकर बोर हो जाता। मैं उसे घर में ही पढ़ाई करवाती, लेकिन वो यही कहता कि मुझे बाहर जाना है। एक औरत मेरे पास आई जिसने अपना बच्चा थामा हुआ था, जिसके बच्चे का सर फटा हुआ था। ऐसी हालत देखकर तो मैं डर गई। मैं कहने लगी कि इसे क्या हुआ है। जब वो औरत चीख कर कहने लगी कि ये सारी तुम्हारी औलाद की कारस्तानी है, उस दिलावर ने मेरे बच्चे का सर फाड़ दिया है, जाकर इसे किसी डॉक्टर से चेक करवाओ, उसका दिमाग खराब है, वो पागल है। ये सुनकर तो मैं गुस्से से आग बगोला हो गई थी कि खबरदार, जो दिलावर के बारे में तुमने ऐसी बातें कही, वो मेरा बेटा है और ऐसा कभी नहीं कर सकता, समझी तुम? और इलाज तो तुम अपना करवाओ। मैं भी उससे तू मैं पर आ गई। वो औरत वहां से चली गई। जब दिलावर घर आया तो वो बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। वो जब भी गुस्से में होता तो उसके साथ यही होता। मैंने दिलावर को समझाया कि बेटा, तुमने क्या किया है, तुमने उसका सर क्यों फाड़ा है? जब वो कहने लगा कि क्या आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे गाली दी है। उसने दिलावर को गाली दी है, जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसे मार कर रख दूंगा। आप तो शुक्र करें कि मैंने उसे जान से नहीं मार डाला। ये उसने इतनी संजीदगी से कहा कि जैसे मेरे सामने कोई 25 साल नौजवान खड़ा हो। उसकी बातें सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई कि आखिर उसमें इतनी ज्यादा बातें कहाँ से आ गई। रमशा तो बहुत मासूम थी। मैं अपना सर थाम कर रह गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि जब से दिलावर बड़ा हो रहा था उसमें अजीब अजीब सी ताकतें आ रही थी। वो कुछ खाता पीता तो था नहीं, बचपन से जो दूध पिया था शायद उसी का असर था। वो जिस चीज को भी हाथ लगाता वो चीज 3-4 इंच आगे हिल जाती, यूं अपनी जगह से दूर हो जाती। दिलावर अपनी उम्र से काफी ज्यादा ज़हीन हो गया था। उस रोज तो मेरे होश उड़ गए जब दिलावर दोपहर को बाहर खेलने गया, लेकिन वापस नहीं आया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर जैसे ही वापस आया तो वकार भी उसके साथ था। मैं गुस्से से वकार को बोली कि ये तुम लोग कहाँ गए थे? जब वकार कहने लगा कि क्या हो गया है, दिलावर तो मेरे साथ था। मैंने वकार को बताया कि इसने तो घर में बताना भी मुनासिब नहीं समझा। उसने जैसे ही मुझसे ये सुना तो कहने लगा कि ये तो डेरे पर ही आया था। वकार ने कुछ साल पहले ही 3-4 जमीनें ले ली थी, वहां पर अपना एक डेरा बनाया था। उस रोज दिलावर जैसे ही खेलने बाहर गया तो शाम तक वापस नहीं आया। वकार का यही कहना था कि वो उसके साथ ही गया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था?
क्योंकि पहले तो कभी भी दिलावर उस डेरे पर नहीं गया था। जब वकार मुझे बताने लगा कि तुम शायद भूल रही हो, जब मैंने ये जमीनें खरीदी थी तब दिलावर ने काफी जिद की थी कि वो मेरे साथ जमीनों पर जाना चाहता है। मैं ही उसे वहां लेकर गया था। शायद इसे तब से रास्ता याद होगा। तुम जानती तो हो कि दिलावर कितना ज़हीन है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, पर मैं आराम से इस बात पर भी यकीन कर चुकी थी। गोया दिलावर की शरारतें ऐसी होती कि सारा मोहल्ला तंग आ चुका था। वो ऐसी ऐसी शरारतें करता कि किसी को भी मालूम नहीं होता था। लेकिन वो औरत जिसके बच्चे का दिलावर ने सर फाड़ा था, वो तो दिलावर के सख्त खिलाफ हो गई। उसने तो यहाँ तक धमकी दी थी कि अगर दिलावर अपने घर से बाहर निकला तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। दिलावर ने ये सुना तो वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, इस औरत की इतनी हिम्मत जो उसने मुझे धमकी दी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने दिलावर को पुरसुकून किया कि फिक्र मत करो, वो औरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जब अगले रोज हमें पता चला कि उस औरत की लाश नदी के किनारे से मिली है, ये सुनकर तो दिलावर इतना खुश हुआ था। मैंने दिलावर को आंखें दिखाई कि खबरदार, जो मोहल्ले के किसी भी शख्स के सामने तुमने इस खुशी का इजहार किया, वरना सबको तुम पर शक होगा। जब दिलावर कहने लगा कि आपको क्या लगता है कि मैं उस मोटी औरत को धक्का दे सकूंगा, दिलावर खिलखिलाकर हंसने लगा, जबकि मैं अपना सर थाम कर रह गई कि ये इतनी अफसोसनाक बात है। लेकिन दिलावर के लिए मजाक है। वो ऐसा ही था। वो शरारतें बहुत करता पर नुकसान नहीं करता था। मोहल्ले वाले भी उससे परेशान हो गए थे। हर कोई जान गया था कि दिलावर में कुछ अजीब बात है। उन शरारतों की वजह से मैंने दिलावर के बहुत से मदरसे बदले, क्योंकि हर मदरसे से मुझे दिलावर की एक ही शिकायत आती कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, ये बहुत बड़े बड़े नुकसान करता है। कभी कभार मुझे यकीन नहीं आता, पर जैसे मोहल्ले वालों ने भी दिलावर की शिकायतें लगाई तो मुझे यकीन हो गया था। मैं दिलावर को कभी कभार मार भी देती, मुझे काफी अफसोस होता। फिर उस रात को मैं जोर जोर से रोती। वकार तसल्ली देता कि क्या हुआ, उसने भी तो बहुत शरारत की थी ना, पर मेरा दिल टूट जाता। मैंने दिलावर पर हाथ उठाया, लेकिन वो कभी मुझसे नाराज नहीं होता, बल्कि मेरे मारने पीटने के बाद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरे लिए पानी लेकर आता। यहाँ तक कि एक रोज मेरे सर में दर्द था, पर मेरे धोने वाले कपड़े बहुत ज्यादा थे जिन्हें मुझे धोना था। रमशा तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी, और मैं भी अपनी बहन की बेटी समझकर उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि मोहल्ले वाले वरना बातें बनाते कि देखो तो सही, अपनी बहन की बेटी से काम करवाती है। इसीलिए आज तक मैंने रमशा से कोई काम नहीं करवाया। पर अनधुले कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। उन्हें देखकर तो मेरे सर में और भी दर्द हो रहा था। जब दिलावर मुझसे कहने लगा कि आप फिक्र मत करें, मैं ये सारे कपड़े धो लूंगा। उस वक्त दिलावर 10 साल का था। मैंने उसे कहा कि तुम ये काम कैसे करोगे, अपने से बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो। जब दिलावर कहने लगा कि बातें करता हूँ तो पूरी भी करता हूँ, क्या मैंने कभी कोई काम अधूरा छोड़ा है, जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। उसने गोया अपना सीना चौड़ा करके कहा था। उसका कद भी काफी बड़ा हो गया था। उसकी बात पर मैं भी रश करने लगी थी कि मेरा बेटा कितना बहादुर है। कहने लगा कि आप फिक्र मत करें, आराम से सो जाएं। जब आप उठेंगे तो ये कपड़े उजले होंगे। मैं भी उसकी बात को मजाक में लेकर सो गई, लेकिन जैसे ही उठी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो सारे कपड़े उजले और बिल्कुल साफ शफाफ थे। मुझे लगा था कि वो तार पर डाले होंगे और अभी तक खुश्क भी नहीं हुए होंगे, पर ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो कपड़े तो एक साइड पर तयशुदा थे, जबकि दिलावर तो गहरी नींद सो रहा था। वो ऐसे सो रहा था जैसे उसने कोई काम भी ना किया हो। दिलावर की सरकत ने तो मुझे चौकन्ना होने पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। कभी कभार वकार से भी इस बात का तज़किरा करती थी, क्योंकि वकार तो ज्यादातर डेरे पर होता, पर वो यही कहता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जो बच्चे ऐसे कहीं किसी और जगह से मिलते हैं ना, वो बहुत ज़हीन होता है, क्योंकि अल्लाह अगर उन्हें कोई महरूमी देता है तो कहीं उन्हें ज्यादा नवाज भी देता है। वकार की इस बातों को सोचकर मैं दिलावर से फिर से ठीक हो जाती, वरना तो मुझे उससे डर लगता था।
पर ये उन दिनों की बात है जब मैं दिलावर को पूरे घर में ढूंढ रही थी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। जब अचानक ही मुझे छत का ख्याल आया कि कहीं दिलावर छत पर न गया हो, लेकिन वो कभी भी छत पर नहीं जाता था। छत पर जाने से तो मुझे भी काफी खौफ महसूस होता, क्योंकि वहां पर पिछले सिमत से जंगल लगता था, जिधर से काफी जंगली जानवरों की आवाजें और भी डराने लगती। इसलिए मैं रमशा को भी मना करती थी कि कभी भी रात के वक्त जंगल में ना जाना। लेकिन उस रात जैसे ही दिलावर रूम से बाहर गया था, अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद दिलावर छत पर ही गया है। मैंने डरते डरते कदमों के साथ छत पर जाने ही लगी, जब अचानक मुझे पीछे से कहकों की आवाजें आने लगी। पता नहीं ये कहके कौन लगा रहा था, पर यह आवाज बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो, गोया मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं जैसे ही छत पर गई तो दिलावर ही किसी से बातें कर रहा था। वो इतना ऊंचा बोल रहा था, पर वो जिससे बातें कर रहा था वो जो कोई भी था उसका रुख दूसरी तरफ था, मुझे दिखाई ना दिया। मैंने दिलावर को चीख कर बुलाया। फौरन वो मेरे पास आया, कहने लगा, क्या हो गया है, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? उसने मेरा हाथ थामा और मुझे नीचे लेकर गया। उस दिन के बाद से मुझे दिलावर से और भी खौफ महसूस होने लगा। अब मैं उसे बुलाती तक नहीं थी, उससे दूर दूर ही रहती। एक रोज जब वो फिर से अपने रूम से गायब था, मैंने उसे हर जगह तलाश कर लिया, वो कहीं भी नहीं था। जब अचानक से मुझे किचन से सरगोशी की आवाज सुनाई थी। मैं जैसे ही किचन में पहुंची तो मेरी कोनी कांच के गिलास से टकराई। जैसे ही वो गिलास चकनाचूर हो गया, उसी पल वो आवाज भी गायब हो गई। मैंने खौफ से अपनी आंखें भींच ली, क्योंकि अगर ये गिलास ना टूटता तो शायद मैं पता लगा लेती कि ये आवाज कहाँ से आई थी। फिर मैं फौरन दोबारा से दिलावर के रूम में गई, लेकिन ये देखकर तो मेरे उसान खता हो गए, क्योंकि दिलावर तो वहां पर आराम की नींद सो रहा था। अब हमेशा यही होता। जब एक रोज अचानक ही रमशा कहने लगी कि खाला मुझे पार्टी पर जाना है, मैं उसे पार्टी पर जाने की इजाजत देती थी, क्योंकि मैंने रमशा पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन जैसे ही दिलावर ने ये सुना तो उसकी आंखें एक पल को बदल गईं। वो सुरमई आंखें पल भर में रंग तब्दील कर चुकी थी, जब अगले ही पल दिलावर कहने लगा कि खबरदार तुम उस पार्टी में गई, जानती हो ना कि माहौल कितना खराब होता है। दिलावर उस वक्त जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया था। कभी कभार तो मैं उसकी नजर उतारा करती कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। मुझे उसके साथ साथ अपनी रमशा की भी बहुत फिक्र होती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए नाम महरम थे। लेकिन मैंने ये भी देखना शुरू कर दिया था कि दिलावर रमशा को लेकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। उसने रमशा पर पाबंदी लगा दी थी। मैंने दिलावर को लाख समझाया कि बेटा रमशा पहले भी पार्टीज पर जाती रही है, उसकी सहेलियां उसके साथ होती हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जब दिलावर कहने लगा कि अगर आपकी सगी बेटी पार्टी पर जाती और आधी रात तक वापस आती तो क्या आपको बुरा न लगता? यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पहली दफा दिलावर ने मुझसे ऐसी बात की थी कि मैं खामोश हो गई। मैंने रमशा से कहा कि रमशा प्लीज आज के लिए तुम थोड़ा सा समझौता कर लो, पर वो मुंह बनाकर वापस अपने कमरे में चली गई। पर दिलावर अब ऐसा ही था। जब भी किसी लड़की की बात होती कि किसी ने किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो दिलावर आग बगोला हो जाता, फौरन उठकर बैठ जाता। गुस्से से वो पागल हो जाता, जैसे वो कोई किसी की अपनी बहन हो। ये जुनून देखकर तो मैं बहुत ज्यादा बौखला गई थी, पर वकार मुझे कुछ न कहता। वकार यही कहता कि देखो जवान होना है, जैसे ये 25 साल का होगा तो इसका दिल कुछ नरम हो जाएगा, अभी ये कुछ ज्यादा ही सोचता है, तुम इसे इसके हाल पर छोड़ दो। पर मुझे तो उसकी जान के लाले पड़े होते हैं कि अगर कल कलां को इसने किसी के साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे तो दिलावर अब जान से भी अजीज हो गया था। जब एक रोज फिर से ऐसे ही मोहल्ले में खबर फैली कि नदी के किनारे से फिर से किसी लड़की की लाश मिली है, जिसकी हालत काफी तशवीशनाक है। लगता है किसी लड़के ने उससे ज्यादती की है। यह सुनकर तो दिलावर दांत पीस कर गुर्राया कि मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। वो बाहर निकलने वाला था जब मैंने उसे तसल्ली दी और खबरदार किया, जो तुम घर से बाहर निकले तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है। जब दिलावर कहने लगा कि मैं चुप करके नहीं बैठ सकता,
अगर किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगा, ये मेरा हक बनता है। दिलावर की आंखें एक लम्हे को फिर से बदल गई। मुझे तो अजीब सी वहशत हो रही थी। मैं उसे जितना भी संभालती वो मेरे हाथों से उतना ही निकलता जा रहा था। अब तो वो जवान हो चुका था। जब एक दिन दिलावर कहने लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाना है, मैंने उसे इजाजत दे दी। वो 3 से 4 दिन के लिए घर से बाहर चला गया। उन्हीं दिनों के दौरान अचानक नदी से उस शख्स की लाश बरामद हुई थी जिसने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी, जो कुछ देर पहले ही मरी थी। उस शख्स को दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया था। हर कोई ये देखकर लरस कर रह गया। पर हैरत की बात ये थी कि जिसने भी उसके साथ ये सब किया था उसका सुराग नहीं मिल सका कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। पर मैंने सुख का सांस लिया कि शुक्र है दिलावर उस वक्त अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, वरना जिसने भी ये खबर सुनी थी उसका पहला शक तो मेरे बेटे दिलावर पर ही जाना था। जैसे ही दिलावर आया तो मैंने उससे पहली बात यही की कि बेटा देखो, अल्लाह ताला सजा दे ही देता है। उस लड़की के साथ जिसने भी ज्यादती की थी, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी लाश नदी के पार से मिली है जब तुम अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे। दिलावर ने जैसे ही यह खबर सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगा कि अम्मा बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिसके साथ भी ज्यादती हो उस इंसान को सूली पर लटका देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उतना ही जज्बाती हो जाता। रमशा को तो वैसे ही बाहर नहीं जाने देता। मुझे भी यही कहता कि रमशा पर नजर रखा करें। अब रमशा का तो बाहर आना जाना ही बंद हो गया। वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद हो गई थी। दिलावर पर उस वक्त 20 साल का ही था। मैं उसको लेकर बहुत जज्बाती थी। दिलावर मुझे कहने लगा कि अम्मा रमशा का भी रिश्ता तलाश करना शुरू कर दे। उसकी बात पर मैंने उसे कहा कि रमशा पढ़ाई कर रही है, मैं ऐसे उसकी शादी नहीं कर सकती। जब दिलावर कहने लगा कि अम्मा पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, रमशा हाथ से निकलती जा रही है, मैंने उससे टोका कि अपनी बहन के बारे में तुम ऐसे क्यों कहते हो। जब वो कहने लगा कि अम्मा मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, आप नहीं जानती, मुझे तो लगता है रमशा से हमें मोबाइल भी ले लेना चाहिए। ये सुनकर तो मैं फौरन तड़प उठी। मैंने उससे कहा कि देखो दिलावर, खबरदार जो आइंदा के बाद तुमने रमशा के खिलाफ ऐसी बातें की, मैं उस पर अगर इतनी पाबंदी नहीं लगाती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे झील का नाजायज फायदा उठाएगी। मुझे उस पर पूरा यकीन है। जब अचानक ही एक रोज दिलावर कहने लगा कि अम्मा अच्छा हम दोनों मिलकर रमशा को लेने जाते हैं, उसे सरप्राइज देते हैं, वापसी पर आइसक्रीम भी खाते हैं। उसकी बात सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि आज तक कभी उसने मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। वो तो बस अपने काम में मसरूफ रहता, रोज ही वो बाहर चला जाता। उसे तो पढ़ाई से भी इतना लगाव नहीं था। मैं खुश हो गई कि जिंदगी में पहली दफा दिलावर ने ऐसी फरमाइश की है। मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी आ गई, लेकिन जैसे ही सामने का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने रमशा को किसी लड़के के साथ देखा था। दिलावर मुझसे कहने लगा कि देखें, मैं आपसे कहता था कि इस पर नजर रखें। मैं पहले ही जानता था कि यकीनन किसी लड़के के साथ दोस्ती कर चुकी है। मैं बहुत गुस्से में आ गई। रमशा ने हम दोनों को देखा तो उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी हरकत भी करेगी। मुझे काफी अफसोस हो रहा था कि मैंने उस पर नजर नहीं रखी। बस यही सोचकर उसे खुली छूट दे देती कि आखिर वो मेरी मरहूमा बहन की बेटी है। पर अब पानी सर से ऊपर तक जा चुका था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रमशा का अच्छी जगह रिश्ता पक्का कर दूंगी। तभी मैंने दिलावर को काफी मनाया था। मैंने उसे 3-4 रिश्ते दिखाए। जब वो कहने लगी कि नहीं, ये रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जब अचानक ही दिलावर ने मुझे एक लड़के से मिलवाया। कहने लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, आप रमशा का इसके साथ रिश्ता पक्का कर दें। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि आखिर ऐसे जांच पड़ताल किए बगैर मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ। लेकिन दिलावर मुझे कहने लगा कि मैंने इस लड़के को परख लिया है, ये लड़का रमशा को सारी जिंदगी खुश रखेगा। यूं मैंने आंखें बंद करके दिलावर पर भरोसा कर लिया और इस तरह रमशा का रिश्ता पक्का कर दिया। यूं रमशा की शादी हो गई। पर अब दिलावर और मैं एक ही घर में रहते हैं। रमशा के चले जाने से मैं बहुत उदास रहने लगी। तभी कभी कभार वो मुझे लेकर कहीं चला जाया करता। ये उस रोज अचानक रात का पहर था
जब मुझे ऐसे लगा कि जैसे छत पर किसी के चलने की आवाजें आ रही हूँ, जैसे बहुत ज्यादा लोग छत पर मौजूद हूँ। मैंने सोचा, जैसे ये महसूस किया तो मेरा चेहरा पसीने से तर हो गया, क्योंकि उस वक्त तो वकार भी अपने बिजनेस टूर पर गए थे। मैं हमेशा दिलावर को यही कहती कि वकार का हाथ बटाया करो ताकि उन पर ज्यादा बोझ न बने, लेकिन दिलावर हमेशा ये सुनकर मुझे गुस्से से कहता कि नहीं, मैं इन कामों में नहीं पड़ सकता, मुझे बिजनेस वाले कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही मुझे छत से आवाज आई तो मैं फौरन ही तड़प कर उठ गई, क्योंकि इस बार तो वकार भी मेरे साथ नहीं था। मैं जैसे जैसे छत पर जा रही थी, मुझे किसी मर्दाना आवाज का एहसास हो रहा था, जैसे कोई किसी से गुस्से में बात कर रहा हो। पता नहीं ये सब क्या था। उस रोज मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा कई दफा हो चुका था। लेकिन पहले रमशा का सहारा होता, लेकिन जब से मैं घर में अकेली रहती थी मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस होती। जब अचानक एक रोज हमारे घर की लाइट चली गई, मेरा घर बिल्कुल सुनसान हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अजीब सी आवाजें आ रही हूँ। उस वक्त दिलावर घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मेरे घर पर मौजूद हो। मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। मुझे अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ, जैसे मेरा वजूद झुलस गया हो। कुछ देर बाद ही लाइट फिर से आ गई। मैंने जैसे ही देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। दिलावर जैसे ही घर आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। वो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, आप खामखा में महसूस कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जब से रमशा की रुखसती हुई है तब से हमारे साथ अजीब वाकयात पेश आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे घर में हम तीनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। दिलावर ने जैसे ही सुना तो उसकी हवाइयां उड़ गई। कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, यकीनन आपको कोई वहम हुआ है। मैंने भी उसकी बात मान ली। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मैं किचन में चाय बनाने गई जब अचानक ही गलती से मेरा दुपट्टा चूल्हे के पास आ गया और मेरे दुपट्टे को आग लग गई। लेकिन ये सब कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं चाय बनाने में बहुत ज्यादा मगन थी। पर अचानक ही वहां पर दिलावर आ गया। वो मुझसे कहने लगा, अम्मा ये आप क्या कर रही हैं, आप होश में तो हैं। दिलावर ने एक झटके से दुपट्टा दूर उछाला और अपने पैरों से आग बुझाई। मैं दिलावर को किचन में देखकर तो हक्का बक्का हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दिलावर को तो मैंने खुद बिस्किट लेने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त खुद परेशान हो गई। मैंने इसको झंझोड़ कर कहा था, आज तो तुम बता ही दो कि तुम कौन हो। मुझे ख्याल आया कि मैंने तो इसे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से उठाया था, जबकि ये भिलक भिलक कर रो रहा था। उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन है। मैंने तो ये सोचना भी गवारा नहीं किया कि किसका बेटा है, किसकी औलाद है। मैं तो बस इसे अपने पास ले आई थी। पर अब मुझे खटक रहा था कि मैंने जांच पड़ताल क्यों नहीं की। मैं दिलावर को झंझोड़ कर कहने लगी, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी शनाख्त क्या है। दिलावर कहने लगा कि फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पर आपको सारी बात बता दूंगा। मैंने उससे कहा, नहीं, तुम्हें मेरी कसम आज तुम्हें बताना होगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मैंने दिलावर को काफी इसरार किया। तंग आकर उसने मुझे कहा कि जब आप मुझे उस मस्जिद की सीढ़ी से उठाकर लाई थी तब मुझे मेरे सगे बाप ने वहां छोड़ा था, जो कि एक जिनजादा था। हाँ, ये बात सच है कि मैं एक जिनजादा हूँ। मैं एक जिनजादा हूँ। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया। मुझे ये बस्ती बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं जानता था कि एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर गैर मामूली ताकतें थी। मैं सबको परखने लगा। मुझे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि कोई किसी के साथ नाइंसाफी करे। जैसे ही उस लड़की के साथ जाती हुई तो मैंने उस इंसान को भी मार दिया। मैंने जैसे ही दिलावर की बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिलावर कहने लगा, हाँ अम्मा, आपको ये बात मैं बताकर चला गया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, पर बात गलत थी। मैं तो उस इंसान का खात्मा करने जा रहा था जिसने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी, क्योंकि मुझे मेरी बस्ती से इस बात का हुक्म दिया गया था कि तुम इंसानों की बस्ती में जा रहे हो,
लेकिन कोशिश करना कि वहां जाकर 3 नेकियां करना। इसीलिए मैं अब नेकियों की तलाश में था। इससे पहले कि उस औरत ने मुझे बुरा भला कहा था, वो मेरे सामने किसी को डांट रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसका बच्चा भी अपनी माँ के कहने पर मुझसे बदतमीजी करता। मुझे यह गवारा नहीं था, तभी मैंने उस बच्चे का सर फोड़ा। यूं ही जब मैं छोटा था तब मदरसे के एक बच्चे ने एक उस्ताद को गाली दी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो उस्ताद हमें पढ़ा रहा है उसको गाली दे। तभी मैंने उस बच्चे का बाजू तोड़ दिया। मैंने जैसे ही दिलावर की बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब दिलावर कहने लगा कि अम्मा, अब तो मेरी वो माँ है जिन्होंने मेरी परवरिश की है, मैं आपको कभी नहीं भुला सकता। लेकिन मेरे सगे माँ बाप भी हैं जिन्होंने मुझे सीढ़ियों पर छोड़ा था, क्योंकि उनकी बस्ती के दुश्मन उन पर राग़िब हो गए थे। जैसे ही मेरी पैदाइश हुई थी तो उनके दुश्मन मुझे छीनने लगे थे। इसीलिए मेरे अब्बा आदमजादों की बस्ती में आ गए और उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मस्जिद की सीढ़ियों पर तो कोई नेक इंसान ही आ सकता था। इसीलिए मेरे अब्बा ने मुझे मस्जिद की सीढ़ियों पर छोड़ा ताकि किसी नेक मखलूक के हाथ लगूं। लेकिन जैसे ही मैं 15 साल का हुआ, उसी वक्त आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर अजीब सी तब्दीली आई हो। मुझे तो पता नहीं था कि ये तब्दीली कैसी है, पर उसके बाद मेरे सामने जो हयोला नमूदार हुआ उसे देखकर मैं हकला गया। वो हयोला बोला कि मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त का एहसास हुआ कि मैं कोई आदमजाद नहीं बल्कि एक जिन्नजादा हूँ। मुझे सब कुछ पता चल गया जो मेरे साथ होता था। मेरे साथ गैर मामूली ताकतें थीं, पर मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं एक जिन्नजादा हूँ। मुझे पहली दफा मेरे अब्बा ने बताया कि जैसे ही तुम 20 साल के होगे उसके बाद तुम्हें तुम्हारी अपनी बस्ती में आना होगा। मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपके साथ सारी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे यही कहा कि देखो, 20 साल बाद तुम्हें वापस जरूर आना होगा, और हाँ, तुम्हें ऐसी नेकियां करके आना है कि तुम अपनी बस्ती में रह सको। अभी मेरी एक और नेकी रहती थी। मेरी वो नेकी यही थी जो मैंने रमशा का रिश्ता एक नेक इंसान से करवाया था। मैं जैसे ही उस रोज नदी के पास से गुजर रहा था, मुझे वहाँ एक शख्स दिखाई दिया जो काफी रो रहा था। मैंने जैसे ही उससे पूछा तो वो कहने लगा कि आज मेरी शादी थी, लेकिन शादी वाले दिन ही दुल्हन गायब हो गई, क्योंकि उसके साथ जबरदस्ती शादी की जा रही थी। पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने तो काफी ख्वाब सजाए थे। मुझे तो ये लगा था कि काफी अरसे बाद आखिरकार मेरी शादी हो रही है, क्योंकि मेरे चचा मेरी शादी नहीं होने दे रहे थे। वो हर तरह की रुकावट डालते ताकि मेरी शादी न हो सके। लेकिन इस बार वो कामयाब हो गए और यूं वो लड़की भाग गई। पर अब मेरी शादी कैसे होगी? क्योंकि मेरे खानदान वालों को यही पता है कि मेरी शादी नहीं हो रही। यकीनन मेरी किस्मत खराब है। मैंने जैसे ही उसकी बातें सुनी तो मुझे ख्याल आया कि आखिर मेरी भी एक नेकी रहती है। तब मैंने फैसला किया कि मैं फौरन उस लड़के की मदद करूंगा। मैंने उस लड़के को परख लिया था। मैं जान गया था कि रमशा के लिए वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वो अच्छा कमाता था। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप रमशा के लिए उस इंसान का रिश्ता पक्का कर दें। मैंने जैसे ही दिलावर की बातें सुनी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे सामने वो दिलावर नहीं बल्कि एक जिन्नजादा था जिसे मैं अपना बेटा मानती थी और जिसकी मैं परवरिश करती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात सच थी कि ये आंखों का धोखा बिल्कुल नहीं था। मैंने जल्दी से उसे अपने गले से लगाया था और उससे कहने लगी कि बेटा, मैं जान गई हूँ कि तुम एक जिन्नजादे हो, लेकिन मैं तुम्हें अब जिन्नजादा नहीं कहूंगी बल्कि तुम्हें अपना बेटा ही कहूंगी। मैंने 20 साल तुम्हें अपनी गोद में पाला है, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा है। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। जब दिलावर कहने लगा, नहीं माँ, मुझे तो जाना ही होगा। मैंने पहले ही दिन 3-4 ऊपर कर लिए, क्योंकि मेरे अब्बा रोज ही मेरे पास आते थे। वो छत पर मुझसे मिलते थे, जिसकी वजह से मैं फौरन छत पर चला जाता। मैं उनसे मोहलत मांग रहा था, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। अब तो मुझे कोई मोहलत भी नहीं मिल सकती। मुझे अब वापस जाना होगा, लेकिन हाँ, मैं आपसे जरूर मिलने आया करूंगा। दिलावर ने जैसे ये कहा, उसके बाद वो फौरन ही वहां से चला गया। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी थम सी गई हो। कुछ दिन के बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं वकार और
रमशा को भी दिलावर की सारी सच्चाई बता दूंगी। यूं मैंने उन दोनों को भी दिलावर के बारे में बता दिया। रमशा तो कहने लगी कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये उसी तरह की मखलूक है जो कि मुझ पर नजर रखता था। अब तो रमशा भी दिलावर को बहुत ज्यादा मिस करती। दिलावर कभी कभार हमसे मिलने आ जाया करता। वो हमारी बहुत ज्यादा मदद करता था। उसकी मदद से हमारे दिन भी अच्छे गुजरने लगे थे। दिलावर कभी कभार तो मुझे अपनी बस्ती की सैर पर भी ले जाया करता था। मैं जैसे ही उसकी बस्ती पर जाती तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती। उसकी बस्ती इतनी खूबसूरत थी, मैंने कभी भी इतनी खूबसूरत वादी नहीं देखी थी। दिलावर मुझे वहां से मीठे मीठे फल तोड़ कर देता। यूं मैं दिलावर के माँ बाप से भी मिली थी। दिलावर की माँ ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था।